میں نے مسکان کے رشتے کی بات کی تھی اپنے دوست سے، تو وہ لوگ گھر آنا چاہ رہے ہیں۔ کب آئیں گے وہ لوگ؟ بس آج کل میں آ جائیں گے۔ اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ جیسے ہی میں نے اس سے ذکر کیا تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے مسکان کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ابھی تو بس آ رہے ہیں، تم اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ آپ مجھے پہلے بتاتے، میں گھر میں کچھ انتظامات کر کے رکھتی۔ فکر تو ہوتی ہے نا رفیق صاحب۔ اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ ہونا ہوگا تو ویسے بھی ہو جائے گا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں لڑکا کرتا کیا ہے؟ گھر میں کون کون ہے؟ بھائی لڑکا جو ہے دبئی میں جاب کرتا ہے، 2 بھائی اور 1 بہن ہے، BA کیا ہوا ہے اس نے، سب شادی شدہ ہیں، یہ سب سے چھوٹا تو ہے۔ کیا ہماری مسکان شادی کر کے دبئی چلی جائے گی؟ تم کہاں اتنی دور کی سوچ رہی ہو؟ ابھی انہیں آنے تو دو، پھر دیکھتے ہیں۔ ماں ہونا ہاں بچی کو خود سے دور کرنے کا سوچ کے ہی دل کام جاتا ہے، تو یہ تو پھر ملک سے باہر چلی جائے گی۔ خیر سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم یہ بتاؤ کہ مسکان کے لیے کچھ جوڑ کے رکھا ہے؟ ہاں کافی کچھ ہے، رکھا ہے کافی کچھ میں نے، اور کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ چلیں آپ کو میری محنت نظر تو آئی؟ ویسے آپ نے زندگی میں پہلی بار میری تعریف کی ہے۔ عورت اگر سمجھدار ہو نا تو مرد کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، جیسے میری ہو گئی۔ بھئی ہمارا نواسا کہاں ہے؟ مجھے آج اسے باہر لے جانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ یقین کریں سارا دن مسکان اس کے ساتھ کھیل کے ہی گزار دیتی ہے، اور وہ بھی ایک لمحہ اس کے بغیر نہیں گزارتا۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ بلاؤ نا اس کو یار، بڑا پیارا بچہ ہے۔ ابھی بلاتی ہوں میں اسے۔ خالہ کی شادی ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ تم کیا ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے ہو، اور تم کیا ہر وقت خالہ کے ساتھ چپکے رہتے ہو؟ اچھا خالہ تو چلی جائیں گی آپ کو چھوڑ کر۔ اوئے کیا، ایک کام کرتے ہیں زافیار، خالہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے امی ناراض ہے مجھ سے؟ تمہیں نہیں پتا؟ امی میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو آپ اس طرح مجھ سے ناراض ہیں؟ تمہاری وجہ سے میں اور تمہارا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے بھائی سے نہیں ملتی، اور تمہاری وجہ سے ایمان اس سب سے گزری ہے، اور جو کچھ تم نے ایمان کے ساتھ کیا نا، اس کے لیے نہ میں تمہیں کبھی معاف کروں گی اور نہ میرا اللہ۔ امی میں نے شادی کی ہے، اور شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور میں نے کون سا ایمان کو طلاق دے دی ہے؟ آفرین ہے، آفرین ہے تمہاری اس گھٹیا سوچ پہ۔ اگر وہ آنا چاہتی ہے میری زندگی میں، اس گھر میں، تو آ سکتی ہے وہ۔ کس قسم کے آدمی ہو تم، اور کس قسم کے باپ ہو تم؟ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ امی میں آپ سے یہی بات تو کرنے آیا تھا۔ اس لڑکی نے کون سا جادو کیا ہے تم پہ؟ آپ پلیز مجھے زاویار سے ملوا دیں، تھوڑی دیر کے لیے لے آئے نا اسے اس گھر۔ میں کس منہ سے جاؤں گی اب اس گھر میں؟ تم نے مجھے اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ کن ارمانوں سے میں ایمان کو اس گھر میں لائی تھی، کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے اس گھر کے لیے، لیکن تم تینوں نے مل کے اس گھر کو برباد کر دیا ہے۔ تمہارا باپ اس عمر میں کام کر رہا ہے۔ آصف صاحب کو اب اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے بچے ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، کیونکہ شاہ امیر بھی مہانور کو لے کر گھر آ چکا ہے۔ مہانور کو ان تمام باتوں کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ انتقام لینا چاہتی ہے، اور سب کے دلوں میں
अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे ही महानवर की माँ को पता चलता है कि महक कभी माँ नहीं बन सकती, तो वो उसे बच्चे के लालच में फंसाने का एक मंसूबा बनाती है। वो महक से कहती है कि वो एक ऐसे बाबा को जानती है जो उसका इलाज करके उसे माँ बना सकता है। लेकिन दर हकीकत ये सब महानूर और उसकी माँ की चाल होती है। वो असल में महक से पैसे ईंटना चाहती है। इसी मकसद के तहत महानूर ने शाह मीर से शादी की ताकि वो इस घर में वापस आ सके। अभी तक शाह मीर और घर के बाकी अफराद को इस साजिश का इल्म नहीं है। जैसे ही महक से महानूर की माँ पैसों का मुतालबा करती है और कहती है कि वो बाबा बहुत ज़्यादा पैसे लेता है, तो महक मजबूरन अलियार से रकम मांगती है। ताहम अलियार साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसके पास इस तरह के फजूल कामों पर लगाने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। यहाँ से महक एक बहुत गलत कदम उठाने का फैसला करती है। वो घर ही के किसी फर्द के पैसे चराने वाली है और चोरी किए हुए पैसे महानूर की माँ को देकर कहेगी कि वो उसे बाबा के पास ले जाए। आसिफ साहब की परेशानी और महानूर की वापसी। आसिफ साहब इस हकीकत को महसूस कर चुके हैं कि हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं और इनके बच्चे उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इनकी ये परेशानी ख़ास तौर पर इस वक्त बढ़ गई जब शाह अमीर महानूर को लेकर वापस घर आ चुका है। महानूर ने उस वापसी को महज खानदान में जगह बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने साजिशी मकासद और इंतकाम की तकमील के लिए इस्तेमाल किया। वो ख़ानदान के तमाम अफराद के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है ताकि अपना एजेंडा आगे बढ़ा सके। महानूर की माँ की घिनौनी साजिश द प्लॉट। जब महानूर की माँ को ये अहम राज पता चलता है कि महक कभी माँ नहीं बन सकती, तो वो उसे एक साजिश के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वो महक की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे बच्चे के लालच के जाल में फंसाती है। महानूर की माँ महक को झूठ बोलती है कि वो एक ऐसे मुआलिज बाबा को जानती है जो जादुई तरीके से उसका इलाज करके उसे औलाद की नामत से नवाज सकता है। ताहम ये सिर्फ पैसे ऐंठने की एक चाल है जो महानूर और उसकी माँ ने मिलकर बनाई है ताकि वो महक को जज्बाती और माली तौर पर ब्लैकमेल कर सके। ये सब इस मकसद को तक़वियत देने के लिए किया जा रहा है जिस के तहत महानूर ने शाह मीर से शादी करके इस घर में दोबारा कदम रखा था। महक का मजबूरन गलत कदम और अंजाम उस चाल के तहत महानूर की माँ महक से मुतालबा करती है कि वह उस महंगे बाबा की फेस के लिए भारी रकम का बंदोबस्त करे। महक इस जबाती दबाव में आकर अपने शोहर अलियार से मदद मांगती है, लेकिन अलियार इस तरह के तोहम परस्ताना सुपरस्टिशियस कामों पर पैसे खर्च करने से सख्ती से इनकार कर देता है और महक के उस फैसले को एक गलत कदम करार देता है। शोहर से इनकार सुनने के बाद महक मजीद मजबूर हो जाती है और हालात का गलत अंदाज़ा लगाकर एक खौफनाक फैसला करती है। वो घर के किसी फर्द के पैसे चोरी करेगी। चोरी की गई ये रकम वो महानूर की माँ के हवाले करेगी ताकि वो उसे बाबा के पास ले जाकर अपना इलाज करवा सके। यूं बोना चाहते हुए भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा बन जाएगी। मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही 2 तफसीली पैराग्राफ फराहम कर दिए हैं जो स्क्रिप्ट के हर पहलू, किरदारों की नफ्सियात, साजिश की तफसीलात और महक के मजबूरन चोरी करने के फैसले का गहराई से अहाता करते हैं। अगर मैं उसी मौत को दोबारा पैराग्राफ की शक्ल में लिखूंगा तो वो सिर्फ तकरार, रिपीटिशन होगी और नई मालूमात फराहम नहीं करेगी। वो अगला कदम क्या हो सकता है? मैं उस कहानी के बारे में मंदरजा झेल तरीक़ों से आपकी मदद कर सकता हूँ। किरदारों का तज्ज़िया, हर किरदार महानूर, महक, अलियार के मकासद और कमज़ोरियों को अलग मुख्तसर पैराग्राफ में बयान करना, कहानी की साखत स्क्रिप्ट में मौजूद वाक़यात, उनकी तरतीब, सीक्वेंस और अहम मोड़, टर्निंग पॉइंट्स की निशानदही करना। मौजूदा सूरत हाल ये है कि ख़ानदान के सरबराह आसिफ साहब अब इस हकीकत का बोझ महसूस कर रहे हैं कि उनकी अथॉरिटी कमज़ोर पड़ चुकी है और उनके बेटे शाह अमीर की जानिब से महानूर को घर लाने के बाद ख़ानदानी निज़ाम में एक गहरा बहरान पैदा हो गया है। महानूर जो इंतकाम की आग में जल रही है, घर में वापस आने के उस मौके को सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी हैसियत बहाल करने
के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसी दौरान महानौर की माँ एक निहायत चालाक मंसूबा तैयार करती है। जब उसे महक के बांझपन का इल्म होता है तो वो इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे जज्बाती तौर पर काबू करने की साजिश करती है। वो महक को एक बाबा के बारे में बताती है जो इसे शिफा दे सकता है। हालांकि ये सब एक ढोंग है जिसका वाहिद मकसद महक से बड़ी रकम निकलवाना है। यह माली मुतालबा बराह रास्ता महानूर की माँ की जानब से किया जाता है, जिससे इस पूरी कार्रवाई का असल मुहर्रिक यानी लालच और धोखाधड़ी खुलकर सामने आ जाता है। इस दबाव में आकर जब महक मदद के लिए अलियार से रुजुआ करती है तो अलियार का दो टोक इनकार, जिसमें वो महक के उस रूहानी झांसे पर पैसे जाया करने को फजूल करार देता है, महक को मुकम्मल तौर पर तन्हा कर देता है। शोहर के तावन से महरूम होने के बाद महक के पास बज़ाहिर कोई चारा नहीं बचता और वो जज्बाती अंधेपन में एक गैर अखलाकी और ख़तरनाक रास्ता चुनती है। वो अपने ही घर के किसी फर्द का पैसा चोरी करने का फैसला करती है। चोरी शुदा रकम को वो महानवर की माँ के हवाले करके न सिर्फ अपनी उम्मीदों का सौदा करती है बल्कि खुद को एक कानूनी और अखलाकी मुसीबत में भी डाल देती है और नादानस्तगी में महानौर और उसकी माँ की साजिश को कामयाब बना देती है। महानौर और उसकी माँ का मंसूबा बहुत मुनज़्ज़म है। वो महक की सबसे बड़ी जज्बाती महरूमी माँ बनने की ख्वाहिश को इस्तेमाल करके न सिर्फ माली फ़ायदा हासिल कर रहे हैं बल्कि ख़ानदान में महक की पोजीशन को भी कमज़ोर कर रहे हैं। यहाँ तोहम प्रस्ती एक आले के तौर पर इस्तेमाल हुई है ताकि एक तालीम याफ्ता घर में भी अक्ल पर जज़बात हावी हो जाए। महक का अखलाकी बहरान कहानी का अहम मोड़ है जब महानौर की माँ पैसों का मुतालबा करती है और अलियार उसकी गैर मंतकी ख्वाहिश की माली हमायत करने से इनकार करता है तो महक मुकम्मल तौर पर बेसहारा हो जाती है। अलियार का इनकार अगरचे उसूल पर मबनी है लेकिन उसकी बेहसी लैक ऑफ एम्पैथी महक को तन्हाई में धकेल देती है। उस मायूसी और ज़रूरत के तहत महक अपने अखलाकी इक़्तिदार की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करती है, अपने ही घर से चोरी। ये अमल न सिर्फ महक के किरदार को दागदार करता है बल्कि महानौर की माँ को वो मादी सबूत फराहम करता है जिसकी उसे साजिश को अगले मरहले तक ले जाने के लिए ज़रूरत थी, जिसकी जड़ें महानौर और उसकी माँ की जानब से बिछाई गई साजिश में पियोस ने आसफ साहिब का इख्तियार ख़त्म हो रहा है, जो इस बात की अलामत है कि उनके घर का अखलाकी ढांचे दरहम बरहम हो चुका है। महानौर ने शाह मीर से शादी को महज दाखिले का टिकट बनाया, जिसका असल मकसद इंतकामी कार्रवाई के ज़रिए ख़ानदान के माली और जज्बाती सुकून को तबाह करना है। इस टकराव का बुरा रास्त शिकार महक बनती है, जिसकी कमज़ोरी बांझपन को महानौर की माँ ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। महक का अपने शोहर अलियार से रकम का मुतालबा करना एक वफादारी का इम्तिहान था, जिसमें अलियार अपने मंतकी और गैर जज्बाती रवैये की वजह से फेल हुआ। उसने रकम देने से इनकार करके महक को महानौर की माँ के शिकंजे से निकालने के बजाय उसे तन्हा कर दिया। महक की जानिब से घर से चोरी का फैसला एक खौफनाक पेशीन गोई फोरशेडोइंग है कि जल्द ही यह साजिश खुलकर सामने आएगी और जब ऐसा होगा तो महक का किरदार सबसे ज़्यादा शक व शिबह की ज़द में आएगा। वो न सिर्फ चोरी के जामों में फंसेगी बल्कि महानौर की माँ को इस काबिल बनाएगी कि वो इस रकम को इस्तेमाल करके अपनी साजिश को मंतकी इंजाम तक पहुँचाए। ये सूरत हाल उस बात की वजाहत करती है कि किस तरह एक धोखाबाज गरवा महानौर और माँ एक मजबूर शख्स को अखलाकी पस्ती में धकेल कर अपने मकासद की तकमील करता है। मैं आपके मुतालबे को समझता हूँ, लेकिन मैंने आपके फराहम करदा इस करपट के खलासे को 5 मुख्तलिफ और तफसीली जावियों से पेश कर दिया है। मरबूत कोहेरेंट समरी, तफसीली तशरीह, डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन फोकसिंग ऑन मोटिवेशंस, जामिर बयानी, comprehensive narrative style, लिद्दरमई तनाव का तजज़िया, analysis of dramatic tension and moral crisis, टकराव और नताइज की झलक, focus on conflict and foreshadowing। अगर मैं छुट्टा पैराग्राफ लिखूंगा तो वो लामहाला पचल्ले निकात को दोहराएगा और आपको कोई नई मालूमात फराहम नहीं करेगा। महक का चोरी करने का फैसला दरअसल उसके किरदार की तबाही का आगाज़ है। ये इक़दाम एक ऐसी खफिया खुद साख्ता डोरी है जो अब महानौर और उसकी माँ के हाथ में चली गई है।
महक चूंकि खुद ही मुजरिम बन चुकी है, इसलिए वो न सिर्फ महानूर की माँ को मतलूबा रकम फराहम करके साजिश को जारी रखने की इजाज़त देती है, बल्कि अगर ये चोरी पकड़ी गई तो वो घर वालों की नज़र में मुकम्मल तौर पर गिर जाएगी। ये माली जुर्म उसे अपने शोहर अलियार और ख़ानदान के बाकी अफराद की निगाहों में फ़ौरन मशकूक और नाकाबिल एतबार भी न देगा। ये सस्पेंस अब अरोज पर है कि आया ये रकम वाकई बाबा तक पहुंच पाएगी या नहीं, और जब ये साजिश बिलाखिर बेनकाब होगी तो महक अपने ही हाथों किए गए उस गैर अखलाकी फेल की वजह से अपनी बेगुनाही साबित करने के काबिल नहीं। अरे उस तरह ये सक्रिपेट हमें उस तलक हकीकत से रोशनास कराता है कि किस तरह मोहब्बत और माँ बनने की मासूम ख्वाहिश का इस्तिहसार किया जाता है, और ये कि साजिशी हमेशा सबसे कमज़ोर फरीक को तबाह करके अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। चोरी किए गए पैसों की गुठरी हाथ में लिए हुए महक शदीद पशेमानी और खौफ के आलम में महानूर की माँ से मिलती है। वो बड़ी मुश्किल से कांपते हुए हाथ से रकम उसके हवाले करती है और महानूर की माँ फाथाना अंदाज में मगर बज़ाहिर हमदर्दी का मुजाहिरा करते हुए उसे तसल्ली देती है कि अब जल्द ही उसका इलाज शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो रकम लेकर जाती है, वो सीधा बाबा के पास जाने के बजाय ये पैसे महानूर के हवाले करती है ताकि वो दोनों ये रकम अपने दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसी दौरान चोरी का राज घर में बेनकाब हो जाता है। आसिफ साहब या किसी दूसरे फर्द को अलमारी में पैसे कम होने का इल्म होता है और घर में हंगामा बरपा हो जाता है। शक की सुई सबसे पहले महक पर नहीं जाती, लेकिन महानूर की माँ फौरन मौके का फ़ायदा उठाते हुए बात थमाती है और ऐसे इशारे देती है कि घर का कोई अंदरूनी फर्द ही उस काम में मुलव्वस है। अलियार, जिसे महक के जज्बाती बहरान का इल्म है, दिल ही दिल में महक पर शक करना शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों के दरमियान सर्द महरी और दूरियां बढ़ जाती हैं। महक अपनी चोरी के बोझ तले दबी हर सवाल का जवाब देने से कासर रहती है और यूं उसकी खामोशी उसके जुर्म का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। जबकि महानूर और उसकी माँ पर्दे के पीछे बैठकर इस खानदान को मजीद तोड़ने की साजिशें करती रहती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं चोरी की वारदात के बाद घर का माहौल खौफनाक हद तक जहरीला और मशकूक हो गया है। आसिफ साहब शदीद परेशानी में खानदान के अफराद पर सख्ती करना शुरू कर देते हैं और हर एक को शक की निगाह से देखते हैं। अलियार और महक के दरमियान ताल्लुकात सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अलियार का दिमाग उसे महक पर शक करने से रोक नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसे याद है कि महक ने उससे कितनी बेचैनी से भारी रकम मांगी थी। महक अंदरूनी तौर पर टूट चुकी है। वो न तो अलियार की आंखों में आंखें डालकर देख पाती है और न ही अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि वो वाकई मुजरिम है। महानूर की माँ इस सूरत-हाल को और हुआ देती है। वो बज़ाहिर महक के साथ हमदर्दी का दिखावा करती है, लेकिन चुपके से ऐसी बातें खानदान में फैला देती है जो महक के किरदार पर शक को मज़ीद गहरा करती हैं। नतीजे के तौर पर खानदान का वो हिस्सा जो अब तक महक का साथ दे रहा था, वो भी इससे किनारा कशी अख्तियार करना शुरू कर देता है। ये सब कुछ महानूर के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ख़ानदानी टूट फूट उसे घर में जड़ें मजबूत करने का मज़ीद मौका फराहम करती है और महक बिल्कुल अकेली पड़कर महानूर की साजिश का आसान हदफ बन जाती है। चोरी शुदा रकम और साजिश का अगला मरहला। चोरी शुदा रकम अब महानूर और उसकी माँ के लिए ताकत का एक नया जरिया बन चुकी है। वो ये रकम लेकर गायब नहीं होंगी, बल्कि उसे मज़ीद ड्रामा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगी। महानूर की माँ इस रकम का एक छोटा सा हिस्सा किसी दूर दराज के गैर मारूफ और जाली बाबा के पास जाने का ढोंग रचाने पर खर्च करेगी, ताकि महक का शक ख़त्म हो जाए और उसे लगे कि उसकी कुर्बानी दायर नहीं हुई। बाकी बड़ी रकम महानूर अपनी असल ज़रूरतों जैसे ख़ानदान के अंदर अपने असर और रसूख को मुस्तहकम करने या किसी ऐसे शख्स को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करेगी जो आसिफ साहब और शाह मीर के ख़िलाफ़ मज़ीद मालूमात फराहम कर सके। सबसे अहम बात यह है कि वो जान बूझ कर इस चोरी शुदा
रकम का कुछ हिस्सा घर के किसी ऐसी जगह या किसी दूसरे मासूम किरदार के करीब छिपा देगी ताकि जब भी चोरी की तहकीकात हो तो शक की सुई महक से हटकर किसी और तरफ चली जाए जिससे महक की बेगुनाही साबित ना हो सके और वो हमेशा जेर अताब रहे। यूं इस चोरी शुदा रकम के जरिए वो न सिर्फ महक को ब्लैक मेल करती रहेंगी बल्कि खानदान के अंदर एक नया बहरान और बेयकीनी भी पैदा करेंगी ताकि महानवर के लिए रास्ता हमवार होता रहे। चोरी के इंकिशाफ के बाद घर में सिर्फ शक व शुबा ही नहीं फैला बल्कि खानदानी वफादारी की बुनियादें भी हल गईं। आसिफ साहब का अख्तियार पहले ही कमज़ोर था, अब ये वाक़या उन्हें अपने ही खानदान के सामने मज़ीद बेबस कर देगा। सबसे बड़ा धचका बाहमी एतमाद को लगेगा क्योंकि हर फर्द दूसरे को मशकूक नज़र से देखेगा। महक की जानिब से की गई चोरी भले ही उसका मकसद कितना ही जज्बाती क्यों ना हो, उसे खानदान की नज़रों में इस मकाम पर ला खड़ा करेगी जहां उसका अखलाकी जवाज़ मोरल स्टैंडिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। महानूर सूरत हाल का फ़ायदा एक सियासी मोहरे के तौर पर उठाएगी। वो महक को घर के अंदर एक कमज़ोर नाकाबिल एतमाद फरीक के तौर पर पेश करेगी और ख़ानदान को ये बावर कराएगी कि महक अपने ज़ाती मफादात की खातिर कोई भी हद पार कर सकती है। महानौर खुद को इस अफराद फ्री में मासूम और घर का मुहाफिज बनाकर पेश करेगी ताकि वो ख़ानदान में अपनी जगह मज़ीद पुख्ता करे। यूं चोरी शुदा रकम सिर्फ माली नुकसान नहीं लाएगी बल्कि यह ख़ानदान के इत्तिहाद और अक़दार को तोड़ने का एक आला बन जाएगी जिसका बलवास्ता फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ महानूर को मिलेगा ताकि वो घर पर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सके। महक पूरी रात करौटें बदलती रही। चोरी के राज का बोझ इसके सीने पर ऐसा बैठा था जैसे कोई अनदेखे हाथ मुसलसल उसे दबा रहे हों। सुबह जब वो किचन में उतरी तो महानूर और उसकी माँ पहले से वहाँ मौजूद थीं। दोनों के चेहरों पर वही अजीब सी मुतमईन मुस्कुराहट थी जिसने महक के वजूद में सर्द लहर दौड़ा दी। महानूर ने बेनियाजी से चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम जल्दी जाग गए, आज बहुत सा काम है और गलतियां वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, समझे? इस जुमले में छिपा ताना, छिपी धमकी और छिपा अख्तियार महक के दिल को चीर गया। वो खामोश खड़ी रही, आंखें झुकाकर। महानूर की माँ गोया मजीद तंज छिपाने की जहमत भी नहीं कर रही थी। महक अपनी गलतियों का ख्याल रखना, खानदान का भरोसा एक बार टूट जाए ना फिर लोग मना भी नहीं लगाते। ये जुमला नरम लहजे में कहा गया था मगर उसके अंदर की तलखी इतनी तेज थी कि महक की आंखें नमी से भर गईं। उसने बस हल्की सी सर हलाया और चौलाहा चलाने में मसरूफ हो गई। वो जानती थी कि ये दोनों माँ बेटी अब उसके फैसलों, उसके खौफ और उसकी खामोशी से ताकत कशीद करेंगी। इसी दौरान दरवाज़ा खुला और घर के बड़े अंदर दाखिल हुए। महानूर फौरन नरम लहजे, मतीन अंदाज और फर्जी फिक्र के साथ आगे बढ़ी। खाला जान, मैंने कल रात हिसाब किताब तरतीब दिया है। महक से शायद कोई गलती हो गई थी लेकिन मैंने सब ठीक कर दिया है, आप फिक्र न करें। ये जुमला ऐसे बोला गया जैसे वो घर की सबसे जिम्मेदार लड़की हो, जैसे वही सबको संभालती हो, जैसे महक कभी आतमाद के लायक थी ही नहीं। खाला जान ने तारीफ भरी नज़रों से महानौर की तरफ देखा और यही वो लम्हा था जिसमें महानौर की खामोश जीत मुकम्मल होती दिखाई दी। महक ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आवाज़, उसका वजूद और उसका सच अब अहम नहीं रहे। उसके खिलाफ चलने वाली बाजी इतनी महारत से लड़ी जा रही थी कि वो खुद अपनी बेबसी पर हैरान थी। मगर अंदर कहीं एक छोटा सा शौला अभी जिंदा था, कमज़ोर सही मगर मौजूद। वो जानती थी कि महानूर की जीत तेरपा तभी होगी अगर वो हमेशा खामोश रहे, और शायद अब खामोश रहना उसके लिए सबसे खतरनाक फैसला था। जब खाला जान दूसरे कमरे में चली गई तो महानूर ने अपने कप को मेज पर रखते हुए एक तकबुर भरी नजर महक पर डाली। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चुप रहो, वरना उसने थोड़ा झुककर महक के करीब आते हुए सरगोशी की, वरना ये घर तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। तुम्हारी गलती का शोर पूरे
खानदान तक फैलने में वक्त नहीं लगेगा। महक का दिल सीने में धड़का। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि महानूर सिर्फ धमकी नहीं दे रही, वो उसे जहनी तौर पर मिट्टी में मिलाने का पूरा मंसूबा बना चुकी है। महकानवर के होंठों पर वही मुस्तकिल फखरिया मुस्कुराहट थी, जैसे हर लफ्ज के साथ वो महक के इत्मीनान को ज़बह कर रही हो। महक ने पहली बार हिम्मत करके नजरें उठाएं। उसकी आंखों में थिकन के साथ एक हल्का सा शकवा भी था। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गई, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? महानूर एक लम्हे को रखी, फिर उसकी आंखों में बर्फ सी ठंडक छा गई। क्योंकि मैं ताकत वही रखता है जो दूसरों की कमजोरियों को पहचाने। तुमने मेरे लिए दरवाजा खुद खोल दिया है, अब बंद करना मेरे अख्तियार में है, तुम्हारे नहीं। ये जुमला महक के अंदर गहराई तक उतर गया। उसे एकदम एहसास हुआ कि उस चोरी का राज अब महानूर और उसकी माँ के हाथ में नहीं, बल्कि उसके अपने गर्दन में लटका हुआ फंदा बन चुका है। एक ऐसा फंदा जिसे वो खींच भी सकते हैं, ठेला भी छोड़ सकते हैं। उसी लम्हे दरवाजे के करीब किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो घर का सबसे बड़ा भाई था, जो चूंकि कुछ उन्होंने महसूस करता था, उसलिए माहौल पर उसकी नजर रख गई। महानूर फौरन अपनी नशिस्त सीधी करके मासूमियत ओढ़कर बैठ गई, जैसे वो तो सिर्फ घर की लड़की है जो सबकी भलाई सोचती है। लेकिन महक की नजरें लर्ज चुकी थीं और बड़े भाई की तेज निगाहें ये तब्दीली फौरन भांप गईं। सब ठीक है? उसने तफ्तीशी लहजे में पूछा। महानूर ने फौरन नरमी से कहा, जी सब ठीक है, महक बस थोड़ी सी परेशान है शायद। ये जुमला ऐसे बोला गया जैसे वो महक के लिए फिक्रमंद हो, मगर उसके पीछे छिपा तंज कोई भी समझ सकता था। महक ने उस लम्हे शिद्दत से महसूस किया कि अगर वो आज भी खामोश रही तो हमेशा के लिए घटती रहेगी। उसके अंदर कहीं दबकी हुई खुददारी पहली बार करोट ले रही थी, लेकिन अभी वो पूरी कुव्वत से बाहर आने को तैयार न थी। वो सिर्फ इतना कर सकी कि अपने हाथ मजबूती से आपस में पीछे बांध कर खड़ी हो गई, जैसे खुद को टूटने से रोक रही हो। वो जानती थी अब हर अगला दिन उसके लिए एक इम्तिहान है, और महानूर वो जानती थी इस इम्तिहान का पर्चा उसके हाथ में है। बड़े भाई की निगाहें महक के चेहरे पर जम गई थीं। वो जानता था कि महक नर्म मिजाज है, मगर इतनी हद तक मुंतशिर होना ये बात आम नहीं थी। इसने आहिस्तगी से कहा, महक अगर कुछ मसला है तो बताओ, मैं हूं ना। डरने की बात नहीं। उसकी आवाज में भाई की वही शफकत थी जो कभी महक के दिल को हौसला देती थी, लेकिन आज इस शफकत से ज्यादा उसे उस खौफ ने जकड़ रखा था कि अगर उसने जबान खोली तो इस एक लम्हे में उसकी दुनिया बिखर जाएगी। महानूर ने फौरन बात काटते हुए मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई महक थकी हुई है, कल रात वो रकी। फिर दांस्ता सांस लेते हुए बोली, बस थोड़ा सा हिसाब किताब में मसला हो गया था, मैंने ठीक कर दिया। महक को सिर्फ आराम की जरूरत है। ये जुमला बाहर से बेजरर था, मगर अंदर उसमें छिपा तंज भी था और इशारा भी। बड़े भाई की भनवें तन गईं। उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि बात इतनी सादा नहीं। वो महक की तरफ बढ़ने ही वाला था कि महक ने जल्दी से नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, नहीं भाई, मैं ठीक हूं, वाकई। महानूर के चेहरे पर लम्हाती मुस्कुराहट रिंग गई। वो जानती थी कि उसने महक को एक बार फिर खामोश रहने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इस लम्हे उसे एहसास न था कि बड़े भाई के दिल में शक का छोटा सब बीज बोया जा चुका है। महानूर आगे बढ़ी, बर्तन समेटने का बहाना किया और जाते जाते महक के करीब झुककर इतना आहिस्ता कहा कि सिर्फ महक ही सुन सके, बहुत अच्छा, ऐसे ही रहो, चुप। महक के अंदर कुछ ऐसा टोटा कि वो खुद भी संभल न पाए, जैसे बाथरूम की तुन्हाई ही आज उसकी वाहिद पनाह का हो। वो बरक रफ्तारी उसे अंदर गई और दरवाजा बंद करके दीवार से टक गई। आंखों से बहते आंसू शायद रात की थिकन का नतीजा थे, शायद दिल के जख्मों का, मगर इन आंसुओं के पीछे एक और हकीकत थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सिर्फ रोकर, टूटकर या छिपकर ये सब खत्म नहीं होगा। उसे अपने चेहरे पर बहते आंसुओं में अपना खौफ भी दिखाई दे रहा था, और इस खौफ में छिपा हुआ वो गुस्सा भी जिसे वो बरसों से दबाती आई थी। उसने आईने में खुद को देखा, होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं, मगर अंदर एक अजीब सी आग जलने लगी थी। आखिर क्यों? आखिर कब तक? उसने बेअख्तियार खुद से सवाल किया। बावर्ची खाने में महानूर ने कंखियों से देखा कि बड़े भाई खामोशी से कुछ सोच रहा है। उसके अंदर हल्की सी बेचैनी दौड़ गई। उसे पहली बार लगा कि
शायद इस बार मामला पूरी तरह उसके काबू में नहीं। उसने अपनी माँ को भी आवाज देकर बातचीत में मसरूफ कर लिया गोया मामूल के मुताबिक हो, मगर दिल में ये खौफ बैठ गया था कि अगर बड़े भाई के शक ने जड़ पकड़ ली तो उसकी पूरी बनावटी दुनिया लुढ़ सकती है। इधर बाथरूम में महक ने धीरे से पानी खोलकर अपने हाथ धोए, मगर साथ ही उसे लगा कि शायद उसके अंदर कुछ बदल रहा है। वो रो तो रही थी, मगर अब हर आंसू के साथ वो मजबूत भी हो रही थी, जैसे उसका दिल कह रहा हो खामोशी अब हिफाजत नहीं, जील है। और जब उसने दरवाजा खोला तो इसके कदमों में वो लर्जिश नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। अगरचे वो अभी भी कमजोर थी, जख्मी थी, मगर मुकम्मल तौर पर झुकी हुई नहीं थी। ये वो लम्हा था जहां महानूर को खबर भी ना थी कि महक के अंदर एक नई ताकत जन्म ले रही है, वह ताकत जो किसी दिन उसकी पूरी चालबाजी को अलट सकती है। महक बड़े भाई के सामने बैठ गई, मगर उसकी अंगुलियां एक दूसरे में यूं कैद थीं जैसे वो खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रही हो। बड़े भाई ने उसके चेहरे का बगौर जायजा लिया। महक, मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत देखा है, मगर आज कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। उसने नर्म मगर गहरी आवाज में कहा, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। महक की सांस एक लम्हे को रुकी। उसके दिल में एक जंग छुड़ गई। एक तरफ खौफ था कि अगर उसने सच बोल दिया तो महानौर और उसकी माँ उसकी जिंदगी जहन्नम बना देंगी। दूसरी तरफ इस खामोश अज़ियत से निकलने की ख्वाहिश थी जो उसका गला घोंट रही थी। उसे लगा जैसे उसके अंदर से कोई आवाज आहिस्ता आहिस्ता उठ रही हो, बोल दो वरना ये सब हमेशा के लिए तुम्हारी तकदीर बन जाएगा। लेकिन उसी लम्हे दरवाजे के पीछे हल्की सी सरगाशें सुनाई दे। महक ने गर्दन मोड़कर देखा, महानूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, वो एक पत्थर की तरह जामद थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी धमकी छिपी थी जो लफ्जों से कहीं ज्यादा जोरदार थी। महक का दिल एकदम डूब गया। बड़े भाई ने उसकी निगाहों का पीछा किया और महानूर की मौजूदगी नोट की। महानूर, कोई बात है? उसने पूछा। महानूर तेजी से खुद को संभाल कर आगे आई। नहीं भाई, मैं तो बस देख रही थी कि महक ठीक है या नहीं। उसने इतनी नरमी से बात की कि कोई भी धोखे में आ जाए। फिर उसने एक नज़र महक पर डाली, वो नज़र जो सिर्फ महक समझ सकती थी। खबरदार, महक की सांसें तेज हो गईं, मगर उसने अपने होंठ भींच लिए। ये उसके अंदर जंग फिर से भड़क उठी। बड़े भाई महसूस कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है, मगर वो जानता था कि महक दबाव में है। उसने सवाल बदल दिया। महक, कम से कम ये बताओ, क्या तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है? ये सवाल सीधा दिल में लगा। महक की आंखें भर आए, मगर उसने आंसू रोक लिए। वो चाहती तो इसी लम्हे सब सच बोल सकती थी, चाहती तो अपना गला कटने से बचा सकती थी, चाहती तो अपनी किस्मत बदल सकती थी। मगर फिर वो मंजर उसके जहन में आया, महानूर की माँ की धमकी, चोरी का राज, खानदान की बेरहमी और अपनी इज्जत का बखर जाना। उसने आहिस्ता से सिर झुकाकर कहा, ना भाई, कोई मसला नहीं, सब ठीक है, बस तबीयत खराब है। ये कहकर उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे, जैसे वो अपनी हार को खुद थाम रही हो। बड़े भाई ने उसे गौर से देखा। उसे लगा कि ये झूठ है, मगर वो जब्र महसूस कर सकता था। उसने महक के सिर पर हाथ रखा। अच्छा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, कुछ भी हो मेरे पास आ जाना। महक ने कमजोर सी हाँ में सर हिलाया, मगर दिल में एक अजीब सी लर्जिश दौड़ गई। इस लर्जिश में खौफ भी था, मगर साथ ही एक नई ताकत भी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी खामोशी तोड़नी है। जब वो उठकर कमरे से जाने लगी, महानूर ने एक लम्हे के लिए इसके रास्ते में आकर सरगोशी की, अगली बार अगर तुमने जबान खोली तो न ये घर तुम्हें कबूल करेगा, न कोई इंसान। याद रखना, तुम्हारी अना भी खत्म हो सकती है और तुम्हारी जिंदगी भी। महक रख गई, उसकी पश्त सीधी हो गई। वो पहली बार महानूर की आंखों में आंखें डाल कर बोली, हल्की मगर मजबूत आवाज में, हर धमकी हमेशा नहीं रहती, किसी दिन पलट भी पड़ती है। महानूर चंद लम्हों के लिए पत्थर की तरह जम गई। ये पहली ज़र्ब थी जो उसे किसी ने वापस मारी थी। महक के कदम घर के सहन की तरफ बढ़ते गए, हर कदम खौफ से नहीं बल्कि फैसला साजी